الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا سبق نمبر 10 شروع کریں گے۔ آج کے اس درس میں صفات حروف کے تحت نون ساکن اور تنوین کے قواعد بیان کیے جائیں گے، کچھ مثالیں دی جائیں گی، اور ہم سیکھیں گے کہ نون ساکن جب بھی نون ساکن ہوتا ہے یعنی نون پہ جزم ہوتا ہے، جس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں، جیسا کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، یا جب بھی نون کے تنوین ہوتی ہے، یا سمپل تنوین جس کو ہم کہتے ہیں، نون تنوین کہتے ہیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے۔ اس صورت میں کچھ قواعد ہوتے ہیں جس کو ہم اس ٹائٹل کے تحت پڑھتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ یہ ہمارے صفات حروف میں سے ایسے نان پرماننٹ، یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ایسے صفات میں آتے ہیں جو کہ پرماننٹ نہیں ہوتے، اور اگر ان میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو کبیرہ گناہ تو نہیں ہوتا، بٹ یہ ہے کہ جو تجوید میں جو خوبصورتی ہے اور قرآن پڑھنے میں جو خوبصورتی ہے، اس میں یقیناً فرق آ جاتا ہے۔ تو آج ہم اس امپورٹنٹ ٹاپک کو پڑھیں گے، مثالیں دیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ ہماری تلاوت جو ہے قرآن مجید کو پڑھنا اسی طریقے سے پڑھے جس طرح ہمیں سکھایا گیا ہے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس چیز کو بیان کریں گے کہ نون تنوین کس کو کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ یہاں اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی نون ساکن ہو، ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی جب اس پر جزم ہو، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ان حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد جو نون ہے اس کے اوپر جزم ہے۔ جزم، یا اس کو ہم سکون بھی کہتے ہیں، اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ یا ایک اور مثال ہے عین، عین پہ زبر ہے، نون پہ جزم ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون ساکن ہے۔ اگر اس کنڈیشن میں آپ نون کو دیکھیں گے، یا جب بھی آپ تنوین دیکھیں گے، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر یا دو پیش، اس کو ہم نون تنوین بھی کہتے ہیں، کیونکہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی جو آواز ہے وہ اس نون ساکن کے برابر ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر رسولن، رسولن، لام کے اوپر دو زبر ہے، آپ اس کو ایسے دیکھ لیجئے، اگر لام کے بعد نون ساکن ہوتا تو اس کی آواز بھی رسولن، لام نون زبر لن، اور اسی طرح لام دو زبر لن، یعنی آواز جو ہے یہ نون ساکن اور تنوین کی ایک جیسی ہے، اسی لیے ہم اس کو نون ساکن یا تنوین یا نون تنوین بھی کہتے ہیں۔ اور ان کے جو قواعد ہے وہ ایک دوسرے میں یعنی سیم ہے، ایک ہی قاعدے ہیں، چاہے نون ساکن ہو یا تنوین ہو، ان کے ایک ہی قاعدے ہیں۔ اور مثال میں نے آپ کے سامنے رسولن یہاں بیان کیا ہے۔ اسی طرح کریمن، میم کے نیچے دو زیر، دو زیر بھی نون ساکن کے برابر، اس کے تمام قواعد اور اس کی تمام آواز جو ہے نون ساکن کے برابر۔ اسی طرح محیطن، اور تو کے اوپر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نون، یہ جو تنوین میں دو پیش ہے، کیونکہ دو پیش کی جو آواز ہے وہ بھی نون ساکن کے برابر۔ تو یاد رکھنا چاہیے جب بھی ہمارے پاس نون ساکن ہو، یعنی نون پہ جزم ہو، یا نون تنوین ہو، یا سمپل جس کو ہم نے تنوین نام دیا، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کنڈیشن میں ہمارے پاس چار قواعد پائے جاتے ہیں، یعنی چار طریقے پائے جاتے ہیں، چار طریقوں سے یہ نون ساکن یا نون تنوین ادا کیے جاتے ہیں۔ ان چار قواعد میں سب سے پہلے ہیں اظہار،
इजहार का मतलब होता है जाहिर करना, वाज़ेह करना, सामने ले आना। इजहार यानी जाहिर करना। दूसरी सिफ्त है या दूसरा कायदा है इदगाम। इदगाम का मतलब होता है मर्ज करना, एक दूसरे के अंदर दाखिल करना, मिक्स करना, मिक्सचर बनाना, इसको हम इदगाम कहते हैं। तीसरी कंडीशन, तीसरा कायदा है इक़लाब। इक़लाब का मतलब होता है बदलना, इससे कल्ब भी निकला है। कल्ब का मतलब होता है, इक़लाब का मतलब होता है बदलना, यानी एक हरफ को दूसरे हरफ की आवाज में बदलना। इक़लाब का मतलब होता है नून की आवाज को बदलना। वो मैं बताऊंगा किस दूसरे हरूफ में इसको बदलना है, किस दूसरे हर्फ में इसको बदलना है, तो इसको हम कहते हैं इक़लाब। और तीसरी कंडीशन या तीसरा जो कायदा है नून साकिन और तनवीन का, वो है इख्फा। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, यानी नून की आवाज को या तनवीन की आवाज को आपको छुपाना पड़ेगा, उसको जाहिर नहीं करना, उसको इदगाम नहीं करना, उस पे इक़लाब यानी उसको बदलना नहीं है, बल्कि उसकी आवाज को जाहिर करना। इख्फा और इजहार आपस में अपोजिट सिफतें हैं। जैसे इजहार का मतलब होता है जाहिर करना, इख्फा का मतलब होता है छुपाना। उर्दू जबान में भी हम इजहार और इख्फा इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें जाहिर करके कोई चीज करना, इख्फा मतलब छुपाना। अब हम इन चार कवायद को देखेंगे कि नून साकिन और नून तनवीन पर ये कवायद किस तरह अदा होते हैं, और कुरान से कुछ मिसालें देंगे। तो सबसे पहले हम इजहार को लेंगे। इजहार, इसका दूसरा नाम है इजहार हलकी। हलकी क्यों? क्योंकि इजहार का सबसे पहला आपको मैंने अर्ज किया, इजहार का मतलब वो है जाहिर करना। और हलकी क्यों कहते हैं, इसको अभी आप समझेंगे। देखिए, कब ये इजहार होता है नून पर या नून साकिन पर या तनवीन पर, जब नून साकिन या तनवीन के बाद अगर कोई हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आए। और जैसा कि हम जानते हैं हरूफ हलकी 6 हरूफ है। हमजा हा, जो कि अक्साय हलक यानी सीने की जाने वाला जो गले का हिस्सा होता है उसमें से अदा होते हैं, इसको हम अक्साय हलक भी कहते हैं। हमजा और हा। उसके बाद है आइन और हा, ये वस्त हलक यानी दरमियानी हिस्सा जो हलक का है, बीच वाला हिस्सा जो हलक का है वहां से अदा होता है। इसके बाद है गईन और खा। गईन और खा, और ये दोनों हरूफ जो है ये इब्तिदाई हलक यानी जो मुंह के बाद वाला जो पहला हिस्सा हलक का है, गले का है, वहां से गईन और खा अदा होते हैं। तो इन 6 हरूफ को हम हरूफ हलकी कहते हैं, क्योंकि ये 6 हरूफ के 6 हलक से गले से अदा होते हैं। कायदा क्या है कि जब नून साकिन यानी नून पे जब जज्म हो, या नून तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश, इनके बाद अगर हरूफ हलकी में से कोई हरफ आए तो उस वक्त नून की आवाज को हम जाहिर करते हैं, वाज़ेह करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं इजहार। और चूंकि याद रखने के लिए इजहार हलकी, क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हलकी में से कोई हरफ आए तो इजहार होता है, इसको हम कहते हैं इजहार हलकी। यानी नून को हमें अदा करना है गुन्ने के बगैर। और गुन्ना किसको कहते हैं? गई नून हा। गुन्ना कहते हैं नाक के बांसे में, खैशूम में आवाज को ले जाना। तो इस वक्त जब हम इजहार करते हैं, इजहार हलकी करते हैं नून पर, इसका मतलब ये हो गया कि आवाज को हमें नाक में नहीं ले जाना, आवाज को बल्कि हमने जाहिर करना है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि ये सूरत यानी ऐसा होता है कि जैसा कि आप कभी कभी देखेंगे कि ये जो इजहार है एक ही हरफ में, एक ही लफ्ज में भी होगा, या कभी कभी ये 2 अल्फाज के बीच में होगा। जैसा कि मैं मिसालें दूंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ जो ये पहली कंडीशन है, पहला जो लफ्ज है वो है अनअमता। अनअमता, ये हम अक्सर पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा का ये लफ्ज है अनअमता। अनअमता, अब इसमें कंडीशन देखिए, नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, और आइन जो है ये हरूफ हलकी का एक हर्फ है। जैसा कि यहाँ आपने देखा, इस कंडीशन में हमने नून को कैसे पढ़ा, नून साकिन को कैसे पढ़ा? हमने पढ़ा अन। अन का मतलब होता है जाहिर किया, आवाज को हमने नाक के बासे में नहीं लिया, खैशूम में नहीं लिया। अन अमता, अन अमता, तो नून की आवाज जाहिर हुई। वजह यह था कि नून साकिन के बाद आइन आया,
اور ये एक ही लफ्ज में आप देख रहे हैं, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। इसी तरह एक और है मिन हुम, नून साकिन के बाद ये गोल हा आ रहा है, देख रहे हैं, ये जो गोल हा है ये भी हरूफ हलकी का हिस्सा है। तो यहाँ पे भी हम इजहार हलकी करते हैं। ये दो मिसालें आपके सामने हैं जब हर्फ या लफ्ज एक ही हो। कभी कभी दो लफ्ज होते हैं, जैसे मन एक लफ्ज है, आ मन, ये जो आ है ये हमजा है, और हमजा आपको पता है हमजा भी हरूफ हलकी है, ये भी हरूफ हलकी का एक हर्फ है। तो कैसे पढ़ेंगे? मन आ मन, मन नून की आवाज को जाहिर करेंगे, इजहार करेंगे नून की आवाज पर, मन आ मन। इसी तरह कुफुवन अहद, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूरा कुफुवन अहदुन, कुफुवन दो जबर के बाद हमजा आ रहा है, ठीक है। हम इस पे दो जबर पे या तनवीन पे हम इजहार करेंगे, और इस इजहार को हमने नाम दिया है इजहार हलकी। इजहार हलकी, इजहार आम जबान में हम समझेंगे कि इजहार का मतलब होता है जाहिर का। मिसालें आपके सामने एक एक करके हम देंगे नीचे भी। हमजा की मिसाल, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हमजा आए, जैसा कि यहाँ पर मिसाल है मन आमना, मन आमना, ऊपर भी ये मिसाल थी, नून साकिन के बाद हमजा। कफ़ारिन असीम, क्योंकि यहाँ वक्फ है, वक्फ न सूरत के हम पढ़ेंगे असीमिन, कफ़ारिन असीमिन कफ़ारिन। अब देखिए दो जेर के बाद यहाँ पर हमजा आ रहा है, तो कफ़ारिन, यहाँ पे भी इजहार होगा, इजहार हलकी। हा की मिसाल मिन हादिन, नून साकिन के बाद गोल हा आ रही है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने नून साकिन को इजहार किया, जाहिर किया इसकी आवाज को। कौमिन हादिन, कौमिन, मीम साकिन के बाद दो जेर, और मैंने आपके सामने अर्ज किया दो जेर दो जबर दो पेश, इन तीनों को हम तनवीन कहते हैं या नूनी तनवीन कहते हैं। तो यहाँ पे भी इजहार होगा। आइन जब आ जाए, अनअमता, यहाँ मैंने ऊपर भी ये मिसाल पेश की थी कि नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, तो इजहार हलकी। इसी तरह समीउन अलीमुन, समीउन, उन आइन दो पेश, उसके बाद ये आइन आ रहा है, तो आइन भी जो है ये भी हरूफ हलकी में से है। हा की मिसाल वन हर, वन हर, नून साकिन के बाद हा आ रहा है, तो यहाँ पे भी इजहार, इजहार हलकी। अलीमुन हकीमुन, अलीमुन, अब देखिए मुन, नून की जाहिर हमने आवाज की, तनवीन की जाहिर हमने आवाज की, तो इस वक्त यहाँ पे भी इजहार हलकी। गैन की मिसाल फसयुनगिदूना, तो गैन, नून साकिन के बाद गैन आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इजहार हलकी हमने अदा किया। माअन गदक़न, माअन, अब देखिए दो जबर को हमने जाहिर किया, इजहार हलकी। अब खा की मिसाल मिन खैरिन, मिन खैरिन, मिन, अब देखिए नून साकिन के बाद खा आ रहा है, तो इजहार हलकी। इसी तरह कर्रतुन खासिरतुन, कर्रतुन, तुन आवाज जाहिर किया, खासिरतुन। तो याद रहा इस स्लाइड से हमने ये जाना कि जो नून साकिन या नूनी तनवीन, या जिसको हम सिंपल तनवीन भी कहते हैं, दो जबर दो जेर पेश दो पेश, अगर इनके बाद हरूफ हलकी में से कोई हरफ आए, तो उस वक्त जो कंडीशन होती है, कायदा होता है, उसको हम कहते हैं इजहार। और क्योंकि ये नून का इजहार है, और याद रखने के लिए क्योंकि हरूफ हलकी हमें याद रखना है, तो हम इस इजहार को कहते हैं इजहार हलकी। ये पहला कायदा है जो नून साकिन या तनवीन के ऊपर पेश आता है। दूसरा कायदा है इदगाम, और इदगाम का मतलब होता है मिलाना, यानी इदगाम दो हरफों को एक कर देना। यानी जैसे हम मिक्सचर बनाते हैं ना, नमक और पानी को मिला के, जैसे ये लगता है कि एक ही गोल सोल्यूशन हमने बनाया, इसी तरह दो हरूफ को एक ही हरफ बनाने को इदगाम कहते हैं। और ये खूबसूरती है, इस तरह जो कुरान कारी कुरान पढ़ता है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है।
और ये कायदा कब होता है, याद रखना चाहिए, जब नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून, ये 6 हरूफ है, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये 6 हरूफ, नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से, यानी या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, इनमें से कोई हर्फ आए तो नून साकिन या तनवीन की आवाज को इन हरूफ में से मिलाते हैं, जिसको हम कहते हैं इदगाम। ठीक है, यानी नून को इन हरूफ में से इस तरह मिला के पढ़ते हैं जैसा कि दोनों में एक मुशद्दद होते हैं, यानी जैसा कि लगता है कि ये दोनों आपस में बिल्कुल घुल मिल गए। ठीक है, और बरसगीर में जो कुरान पाक हमें मिलता है, मुसहफ मिलता है, उसमें आप देखते हैं कि अक्सर जब भी हम नून साकिन या तनवीन के बाद इन हरूफ को देखते हैं तो इन हरूफ पे तशदीद बनी होती है, जैसे ये निशान है ना, इसको हम तशदीद कहते हैं, तशदीद बनी होती है, और तशदीद से हम समझते हैं कि उसको इसके साथ मिलाना। मगर असल में जब आप कुरान मजीद का मुसहफ सऊदी अरबिया में या ये जो मिडिल ईस्ट में देखते हैं तो ये तशदीद कभी कभी नहीं बनी होती है। तो आपको कायदा याद रखना है, असल में कायदा ये है कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में कोई हर्फ आए, इन 6 हरूफ का जो मजमुआ है वो है यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। मिसाल यहां पर है, यहां देखिए, यहां पर लिखा है मन यकूलु, मन यकूलु, अगर आप आम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मन यकूलु, मगर आपको मैंने कायदा बताया, नून साकिन के बाद या आ रहा है और आप देख रहे हैं कि या जो है ये यरमलून का एक हर्फ है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, मैं यकूलु, मैं यकूलु, यानी नून की आवाज को हमने मीम के साथ मदगम किया, मिलाया, मिक्स किया, उसको हमने एक दूसरे के साथ बिल्कुल खलत मलत किया। इसी तरह मिन रब्बिहिम को कैसे पढ़ेंगे हम, मिर रब्बिहिम, नून साकिन के बाद रा आ रहा है, ये भी इदगाम की किस्म है, मिर रब्बिहिम। एक और मिसाल है, बिहिजारतिम मिन, अब देखिए दो जेर के बाद मीम आ रहा है तो इदगाम होता है, बिहिजारतिम मिन, यानी थोड़ी सी आवाज तक, यानी जो हम मिलाते हैं ना, उस मिलाने के साथ साथ आवाज को हम थोड़ी देर तक नाक के बांसे में, खैशूम में ले जाते हैं ताकि ये जाहिर हो जाए। इसी तरह हुदल लिल मुत्तकीन, असल में था हुदन और लिल मुत्तकीन, मगर हमने पढ़ा दो जबर, दो जेर, दो पेश या नून साकिन के बाद यरमलून और लाम भी उसमें से शामिल है, तो हमने क्या पढ़ा, हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल, दो जबर को बिल्कुल लाम के साथ हमने मिलाया। इसी तरह है मेवालिन, मिन वालिन के बजाय मेवालिन, क्योंकि हमने नून साकिन को वाव के साथ मिलाया। इसी तरह मन नशाउ, मन नशा को हमने एक साथ मिलाया और मिलाने को हमने बिल्कुल वाज़ेह किया, आवाज को हम बांसे में ले आए, नाक के खैशूम में ले आए, मन नशाउ। तो ये कंडीशन हमारे पास इदगाम की कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, दूसरा कायदा नून साकिन या नून तनवीन का। अब जो इदगाम है नून का, याद रखना चाहिए इसमें दो सिफतें हैं, यानी इदगाम की दो किस्में हैं। ठीक है, इदगाम की दो किस्में, एक किस्म है नून गुन्ना के साथ, यानी इदगाम गुन्ने के साथ, और दूसरी कंडीशन है इदगाम गुन्ने के बगैर। और गुन्ने का मतलब मैंने आपको बताया, नाक के बांसे में आवाज को ले जाना। ठीक है, और बिला गुन्ना, नाक के बांसे में, खैशूम में आवाज को नहीं ले जाना। जैसा कि ऊपर मिसालों से आपको पता लग गया होगा, थोड़ा सा इसको जाहिर करेंगे। देखिए, इदगाम गुन्ने के साथ, यानी इदगाम के साथ जब हम मिलाते हैं और नाक के बांसे में आवाज को ले जाते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं इदगाम बागुन्ना या इदगाम गुन्ने के साथ। और ये तभी होता है जब नून साकिन या तनवीन को हम, उसके बाद आप या, मीम, वाव, नून, यानी इन 6 हरूफ में से यमून, या, मीम, वाव, नून, इनमें से कोई हर्फ आ जाए, जैसा कि यहाँ पर नून साकिन के बाद या आ गया तो हमने पढ़ा मैं यकूलु, एक तो हमने मिलाया, इदगाम किया, दूसरा हमने गुन्ना भी किया, नाक के बांसे में आवाज को ले गए।
जिस तरह यहाँ पर है म्यूवालिन, म्यूवालिन, नून साकिन के बाद वाव आ गया, ये कि यूमिन का या यमून का ये पार्ट है। इसी तरह मन नशाउ, नून साकिन के बाद नून आ गया। तो जहां पर हम इदगाम में यानी मिलाने के साथ साथ गुन्ना भी करते हैं, ऐसे इदगाम को हम कहते हैं इदगाम बगुन्ना या इदगाम गुन्ने के साथ। जबकि अगर इदगाम हो यानी मिलाए मगर गुन्ना ना हो, नून की आवाज बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसी कंडीशन को आप कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना, यानी हमने मिलाया तो सही मगर नून की जो आवाज है वो खत्म हो गई। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर नून साकिन या तनवीन के बाद रा या लाम आ जाए, मिसाल के तौर पर मिर रब्बिहिम, असल में था मिन रब्बिहिम, मगर नून साकिन के बाद रा आ गया जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब यह होगा कि नून साकिन की आवाज को हम रा के साथ मिलाएंगे, हम ऐसे मिलाएंगे कि नून की जो आवाज है या गुन्ने की जो सिफत है वो खत्म हो जाए। मिर रब्बिहिम, आपको लगेगा जैसा कि नून है ही नहीं। इसी तरह हुदल लिल मुत्तकीन, असल में था हुदन, नून की आवाज, मगर नून की आवाज को हमने बिल्कुल खत्म किया, हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक है, तो ऐसे पता हमें चला कि इदगाम कहते हैं जब हम दो हरूफ को आपस में मिलाते हैं और नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हमारे पास यरमलून जिसका मजमुआ इन्हें 6 हरूफ में से या रा मीम लाम वाव नून में से कोई हर्फ आए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज को इन हरूफ में मिलाते हैं, जिसको हम कहते हैं इदगाम। और इसकी दो किस्में हैं, इदगाम के साथ अगर गुन्ना भी हो, नाक के बासे में हम आवाज को ले गए, उसको कहते हैं इदगाम बागुन्ना। वो तब होता है जब नून साकिन या तनवीन के बाद इन 4 हरूफ में से यानी यरमलून के 6 हरूफ में से या नून मीम और वाव आ जाए। और इदगाम के साथ साथ अगर गुन्ना ना हो, जैसा कि रा और लाम अगर आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद, इसको हम कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। कुछ मिसालें और देंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके सामने अर्ज किया, नून साकिन के बाद या आ रहा है तो कैसे पढ़ेंगे, मायुमिनु, मायुमिनु, आवाज को हमने नून की आवाज को या के साथ मिलाया, इदगाम किया और गुन्ना भी किया। गुन्ने का मतलब होता है नाक के बासे में आवाज दे गए। तनवीन के बाद खैरन यराहु, खैरन, रई, दो जबर को या के साथ मिलाया, इसमें हमने इदगाम किया, मिलाया, उस साथ साथ में जो आवाज है नून की वो खशूम में चली गई, खैशूम में चली गई, यानी मासे में चली गई नाक के, इसको हम कहते हैं इदगाम बागुन्ना। एक और मिसाल के साथ है, एक और मिसाल है मीम की। अब मीम हर्फ को देखेंगे, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद मीम आ गया कैसे पढ़ेंगे, लिखा था मिन मिथलिही मगर पढ़ेंगे मिम मिथलिही, नून साकिन को मीम के साथ मिलाएंगे, आवाज नाक के बांसे में चली जाएगी तो इदगाम बागुन्ना कहलाएगा, मिम मिथलिही, मिम मिथलिही। इसी तरह रसूलुम मिनल्लाहि, रसूलुम, दो पेश को हमने मीम के साथ मिलाया क्योंकि दो पेश के बाद मीम आ गया या तनवीन के बाद हमारे पास मीम आ गया, मिनल्लाहि, इदगाम बगुन्ना। इसी तरह नून साकिन या तनवीन के बाद नून आ गया जैसा कि यहाँ पर है मिन नारुन या नारिन, असल में नारिन है यहाँ पर, यहाँ हम पढ़ेंगे मिन नार क्योंकि मिन के बाद नारुन नहीं आएगा, याद रखना चाहिए, ये मिन जो है ये हर्फ जा रहा है, मिन नार, मिन नारिन। ठीक है, नून साकिन को नून के साथ मिलाया, आमिलतुन नासिबतुन, आमिलतुन, दो पेश को नून के साथ मिलाया, इदगाम बगुन्ना। अगर नून साकिन या नून तनवीन के बाद वाव आ जाए जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है तो कैसे पढ़ेंगे, म्यूवालिन। देखिए इदगाम जब हम करेंगे ना तो कम से कम 2 हरकत या एक अलिफ के बराबर आवाज को नाक के बांसे में ले आई, इदगाम बगुन्ना की मिसाल में दे रहा हूँ ऐसे म्यूवालिन। इसी तरह इलाहु वाहिदुन, दो पेश के बाद वाव, इदगाम बगुन्ना, जैसा कि यहाँ पर टिक से जाहिर हो गया, यानी आपको गुन्ना भी करना पड़ेगा। अब दो मिसालें जहां पर इदगाम गुन्ने के साथ नहीं बल्कि बिला गुन्ना हो जाता है, नून साकिन के बाद लाम या नून साकिन के बाद रा, जैसे मिल लदुनका, मिल,
मिल, मिन नहीं मिल, मिल्ला। इसी तरह जन्नत, जन्नातिल लहुम, तिल दो जेर के बाद लाम, जन्नातिल, तिल, तिल लहुम, तिन के बजाय तिल, यानी यहाँ पर नून की आवाज को हमने खत्म कर दिया। इसी तरह अगर नून साकिन या तनवीन के बाद रा आ जाए तो कैसे पढ़ेंगे, मर रहीम, मर, मन के बजाय मर, मर रहीम, नून की आवाज को हमने रा के साथ मदगम किया, मिलाया, और नून की आवाज खत्म हो गई, गुन्ना नहीं हुआ तो इदगाम बिला गुन्ना। इसी तरह ईशतिर रादियतिन, ईशतिर दो जेर के बाद रा, तनवीन के बाद रा, इदगाम बिला गुन्ना, मदगम किया, और जो नून की आवाज है वो बाकी नहीं रही। तो इस तरह हमारे पास दूसरा जो कायदा है जिसको हमने नाम दिया है इदगाम, नून साकिन या नून तनवीन के बाद यरमलून में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होता है। इदगाम का मतलब होता है मिलाना। अब हम तीसरी सिफत के ऊपर आएंगे, और तीसरी सिफत है इकलाब। इसको हम कल्ब भी कहते हैं, कल्ब या इकलाब। कल्ब या इकलाब का मतलब होता है बदलना, यानी नून की आवाज को बिल्कुल बदलना, उसकी आवाज को हमें बिल्कुल दूसरे हरफ में बदलना, और वो दूसरा हरफ है मीम। नून की आवाज को हमें मीम में बदलना है। इस कंडीशन को, इस कायदे को हम कहते हैं इकलाब। इसको कल्ब भी कहते हैं। कल्ब या इकलाब इसका मतलब होता है बदलना। वैसे भी जब हम दिल की बात करते हैं ना, दिल, दिल का भी नाम कल्ब अरब में इसी में पड़ा है, क्योंकि दिल की जो कंडीशन है ना वो भी बदलती रहती है। इंशाल्लाह जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं बताऊंगा कि जो कल्ब है, ये कल्ब इसको क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इकलाब का मतलब होता है बदलना, और ये कंडीशन या ये कायदा तब होता है जब नून साकिन या नून तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश को हम उसकी आवाज को बदल के मीम में तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, इस हालत को हम कहते हैं इकलाब, और ये उस वक्त हो जाता है जब नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए। बा, बा, बस एक हर्फ बा आ जाए, खा वो एक ही कलमे में हो, या याद रखना चाहिए वो बा फौरन दूसरे कलमे में हो, तो याद रखना चाहिए ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इकलाब। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास लफ्ज है, पहले मैं उसको पैसे पढ़ूंगा जैसा ये है। इसमें लिखा है सुन बुलातिन, सुन, सुन बुलातिन, मगर चूंकि नून साकिन के बाद आप देख रहे हैं बा यहाँ पर लिखा गया है, हमने ब्लू कलर में इसको जाहिर किया है, तो कैसे पढ़ेंगे, सुम्बुलातिन, यानी जैसा कि नून है ही नहीं, नून की आवाज को बिल्कुल हमने मीम में तब्दील किया है। सुम्बुलातिन, सुम्बुलातिन। और आप मुसहफ जब देखेंगे तो मुसहफ में आप देखेंगे कि छोटी सी मीम बनी होगी, जो इसको, यानी उन लोगों को जिनको तजवीद का इल्म ना हो, या जो जानते ना हो, या जो भूल गए हों, तो वो ये जाने कि यहाँ पर हमें नून के बजाय मीम को पढ़ना है, तब्दील करना है, इकलाब करना है। इसी तरह यहाँ पर नून साकिन के बाद बा आ रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे, असल में था मिन बाईनी, मगर पढ़ेंगे मिम बाईनी, मिम बाईनी, मीम की आवाज। इसी तरह अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अलीमुम, दो पेश के बाद बा रहा है तो मीम की आवाज निकालेंगे, नून की आवाज को तब्दील करके मीम की आवाज में लाएंगे, बदल लेंगे, इसको हम इक़लाब कहते हैं। इसी तरह ज़ौजिन बहीजिन, दो जेर के बाद बा, यहाँ पे भी हमारे पास इक़लाब होगा। इसी तरह अमदम बईदन, अमदम, दो जबर के बाद बा तो इक़लाब होगा। एग्जाम्पल है यहाँ पर एक और, मिम बाद, नून साकिन के बाद बा, छोटी सी मीम बनी है, इक़लाब। इसी तरह फ़अंबतना, फ़अन के बजाय फ़अंबतना, नून साकिन के बाद बा, यहाँ पे भी इक़लाब। तनवीन की मिसाल लनस्फ़अन बिन्नासियतिन, या नासिया, लनस्फ़अन, दो जबर के बाद बा, तो यहाँ पे भी आवाज को बदलेंगे, इक़लाब करेंगे। इसी तरह यौमइज़िन बिजहन्नम, यौमइज़िन, मीम की आवाज निकालेंगे क्योंकि दो जेर के बाद बा आ रहा है। तो ये तीसरा कायदा है नून साकिन और तनवीन का, जब नून साकिन या तनवीन के बाद हमारे पास सिर्फ एक हरफ यानी बा आ जाए।
चौथी और आखिरी कंडीशन, आखिरी कायदा नून साकिन और तनवीन का है, जिसको हम कहते हैं इख्फा। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, और इख्फा जो है ये इजहार का अपोजिट है। इजहार का मतलब था जाहिर करना, इख्फा का मतलब होता है छुपाना। और ये याद रखना, इसका कायदा याद रखना बहुत आसान है। अगर हमारे पास नून साकिन या तनवीन के बाद इन हरूफ में से कोई आए, अब इन हरूफ को याद रखें, या इस तरह भी याद आप रख सकते हैं कि नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की को छोड़ के, यरमलून को छोड़ के और हरफ बा को छोड़ के बाकी जितने भी हरूफ आ जाते हैं, तो उसमें नून साकिन की आवाज को हम छुपा देते हैं, तनवीन की आवाज को हम छुपा देते हैं। बहुत आसान याद रखना है। हमें पता हरूफ हलकी जब आ जाते हैं तो हमारे पास इजहार होता है, इजहार हलकी, वो 6 हरूफ हो गए। यरमलून आ जाए तो इदगाम होता है, वो भी 6 हरूफ हो गए। और बा आ जाए तो इकलाब होता है, तो 6 6 12 और 13। बाकी जितने भी हरूफ हमारे पास होते हैं 29 में से अगर नून साकिन या तनवीन के बाद उन हरूफ में से कोई हर्फ आए तो इख्फा, तो इख्फा करते हैं। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, यानी नून को बिला तशदीद गुन्ने के साथ इस तरह बढ़ाया जाता है कि उसकी आवाज ऐसे साफ सुनाई न दे जैसे इजहार के वक्त सुनाई देती है। तो आवाज को हम ऐसे अदाज करते हैं कि आवाज ना गुन्ना लगती है ना वो इजहार लगता है। यानी आवाज को हमें थोड़ा सा तो नाक में ले जाना है, मगर अक्सर आवाज को हमें मुंह में ही रखना है। इसको हम कहते हैं इख्फा। और कब ये हो जाता है? जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की, यरमलून के 6 हरूफ और बा के अलावा बाकी हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो याद रखना चाहिए उसको इख्फा कहते हैं। और इस इख्फा को इख्फाई हकीकी भी कहते हैं, याद रखना चाहिए। इख्फाई हकीकी, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की, यरमलून और बा हर्फ के अलावा बाकी जितने हरूफ आ जाते हैं तो इख्फा कहते हैं। मिसाल मैं आपके सामने दूंगा, देखिए यहां पर हमारे पास है आइंदा। आइंदा को आइंदा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद दाल आ रहा है, न ये हरूफ हल्की में से है, न ये यरमलून का हिस्सा है, और न ये बा है। तो कैसे पढ़ेंगे? आइंदा, आइंदा। अब इसको समझिए कैसे पढ़ेंगे। हम अक्सर गलती पढ़ते हैं, आइंदा पढ़ते हैं। देखिए अगर मैं, जो मेरी जुबान है ना, जुबान की जो नोक है, अगर मैं इसको ऊपर तालू के साथ जोड़ दूं तो गुन्ना हो जाता है। गुन्ने का मतलब होता है नाक के बांसे में आवाज को ले जाना। मगर हम क्या करते हैं, हम जो इख्फा करते हैं ना, उस वक्त हमारी जो जुबान है वो हम ऊपर की तरफ नहीं बल्कि बीच में या नीचे ही रखते हैं। जैसे आयादा, जुबान को नीचे रखिए, आवाज को बीच में से निकालिए, थोड़ी सी आवाज नाक में रखिए, बाकी मुंह में ही रखिए। आयादा। अब नून गुन्ना और इख्फा में काफी फर्क है, गुन्ना और इख्फा में फर्क जानना लाजमी है। इसी तरह अंत के बजाय हम पढ़ेंगे आता। याद रखिए मुंह में ही आवाज रखना है, थोड़ी सी आवाज को नाक में ले जाना है। इसको कहते हैं इख्फा, गुन्ना नहीं, इख्फा। आता। इसी तरह कुन तुम के बजाय तुम। इसी तरह अन जैना के बजाय हम पढ़ेंगे जैना। इसी तरह अन दिर के बजाय आदिर, आदिर। अन नहीं पढ़ना। ये याद रखिएगा, अगर हम जुबान को ऊपर की तरफ मिलाएंगे तालु के साथ तो गुन्ना होगा, हमें गुन्ना नहीं करना। जुबान को हमें नीचे ही रखना है, आवाज बीच में से निकालना है, थोड़ी आवाज नाक में चली जाएगी। इसी तरह शाई कदीर। एक और मिसाल, सिजील। एक और मिसाल, कबलिक। एक और मिसाल, इन्हें आवाज को हमें गुन्ना और इजहार के बीच में से निकालना है। और ये जो इख्फा है इसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं, पहले पहल जो तजवीद न जानता हो, मगर बाद में जब आप इसको, इस पे मास्टरी हासिल करेंगे तो आप देखिएगा कि कुरान मजीद जो आप पढ़ेंगे इससे बहुत खूबसूरत वो जाहिर हो जाएगा। हमारे पास एक कुछ मैंने आयत आपके सामने रखी, इसमें हमारे पास ये जो आज हमने 4 कायदे पढ़े हैं नून साकिन और तनवीन के, वो हम इसमें से प्रैक्टिस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कैसे पढ़ेंगे। फ़इन तवल्लौ,
फ़इन तवल्लौ, नून साकिन के बाद ता आ रहा है तो यहाँ इख्फा होगा। फ़इन, आपने देखा मैंने यहाँ पर इख्फा किया है। इख्फा का मतलब मैंने आवाज को छुपाई। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह, यहाँ नून पे गुन्ना होगा क्योंकि नून पे तशदीद है। अलीमुम बिल मुफसिदीन, यहाँ देखिए दो पेश के बाद बा आ रहा है और यहाँ पर जो कायदा है इसको हम कहते हैं इक़लाब। इक़लाब का मतलब होता है नून की आवाज को या तनवीन की आवाज को मीम में बदलना। आप देखिए मैंने कैसे पढ़ा, अलीमुम बिल मुफसिदीन, इक़लाब हो गया। इख्फा की मिसाल आपके सामने आ गई, इक़लाब की मिसाल आ गई। उसके बाद कुल या अहलल किताबी, इस पे आप मद देख रहे हैं तो ये मद मुनफसिल है क्योंकि हर्फ मद और सबब मद अलग अलग कलमे में है। तालौ, वाव साकिन माकबल जबर, वाव लीन है और लीन का मतलब होता है, लीन का मतलब होता है आवाज को मुलायम करना। इला कलिमातिन, देखिए कैसे मैंने पढ़ा, क्योंकि दो जेर के बाद सीन आ रहा है तो इख्फा होगा। कलिमातिन सवाइम बैनना, दो जेर के बाद बा आ रहा है तो यहाँ पे भी इक़लाब होगा ऊपर की तरह। इक़लाब यानी आवाज को बदलेंगे, नून की आवाज को मीम में बदलेंगे। व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शाइअन, दो जबर की आवाज को वाव के साथ मिलाएंगे, इदगाम बगुन्ना। तो इस तरह हम आज का जो लेक्चर है इसको हम एंड करेंगे क्योंकि मिनट खत्म हो गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इस आयत को आप पूरा कीजिएगा और देखिएगा कि कहाँ कहाँ हमारे पास कौन कौन से कायदे नून साकिन या तनवीन के जाहिर हो रहे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।